Hello everyone, welcome to the YouTube channel run by one of my colleague, Radiology Technologist. Radiology, of course, the eye of medicine. So today my topic is the basic principle of MRI. So first we will look at the history of MRI. So Raymond Damadian, he was the first person to perform a full body scan to diagnose cancer, and in the year 1977. And two of his colleagues, Paul Lauterbach and Peter Mansfield, has also contributed. So their contribution was they have contributed towards two-dimensional imaging and faster scanning methods. And one other person was there also, Nikola Tesla, the man behind the magnetic field unit. You will get to know it later. So we will start our topic, basic principles of MRI. MRI is based on the principle of nuclear magnetic resonance, when nuclear refers to the nucleus of atoms. To understand how the signals used to form a magnetic resonance image is produced, we need to understand the structure of atoms. So हम सब ने atomic structure 11th, 12th, 10th, 9th में पढ़ा है. So एक basic look देख लेते हैं. An atom is the smallest unit of chemical unit and is made up of three types of particles: protons, neutrons, and electrons. The nucleus is the dense core of an atom and contains protons and neutrons. एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है और एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं. न्यूक्लियस ये सेंटर ऑफ द एटम, इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ एटम. इट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियस. न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट. तो MRI relies on the magnetic properties of hydrogen atoms to generate the signals that form the basis of medical imaging. Hydrogen has an atomic number of 1, meaning that it contains a single proton and a single electron. तो MRI किस पे बेस्ड है? बेसिकली हमारे बॉडी में ज़्यादातर वाटर, तो वाटर का कंपोजिशन ही होता है H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम. सो हाइड्रोजन एटम्स पर ही MRI डिपेंड करता है, मतलब उनके ही मैग्नेटाइजेशन, उनका ही जो प्रॉपर्टीज़ है, उनके स्ट्रक्चर, उसी पर वही MRI उस चीज़ पर ही डिपेंड करता है. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है एंड इट कंटेन सिंगल प्रोटॉन एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन. सिंगल प्रोटॉन होने की वजह से इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं. सो MRI को प्रोटॉन MRI भी बोला जाता है. तो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोटॉन. द हाइड्रोजन एटम इज ऑफन जस्ट कॉल्ड अ प्रोटॉन इन द फील्ड ऑफ MRI, एंड स्टैंडर्ड MRI इमेजिंग इज फ्रीक्वेंटली रिफर्ड टू एज प्रोटॉन MRI. The most common element that can be used for MRI in body tissues is hydrogen because it is abundant in water, protein and fat molecules. जैसे कि मैंने कहा कि हमारी बॉडी में 70% वाटर से बनी है और प्रोटीन, फैट मॉलिक्यूल्स में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं. तो वाटर इज द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ वाटर, accounting for 50 to 70 of total body weight. Water is also the major component in body fluids like blood and CSF, cerebrospinal fluid, and binds to large molecules like proteins. The proton has an interesting property. It can spin about an axis much like a spinning top. As each proton spins, the movement of charge creates a proton's own small magnetic field with its own north and south poles, magnetic dipole moment. तो प्रोटॉन्स ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये एक रोटेटरी मूवमेंट करते हैं जिसको हम स्पिन कहते हैं. एनी मूविंग चार्ज, हमने पढ़ा ही है कि एनी मूविंग चार्ज जनरेट करंट्स, और मूविंग चार्ज जनरेट करंट्स एंड एवरी करंट हैज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. सो एवरी स्पिनिंग प्रोटॉन हैज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मतलब अगर एक चार्ज मूव करेगा तो उसके आजू बाजू करंट रहेगा ही और वो करंट प्रोड्यूस करेगा और करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड भी उसके आसपास जनरेट होती है. तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिस्क्राइब करता है. Normally the protons in human body move randomly in any direction. तो protons randomly move करते हैं in any direction in human body. When external magnetic field is applied, this randomly moving protons align and spin in the direction of external magnetic field. तो जब हम पेशेंट को बोर में प्लेस करते हैं तो मैग्नेट इज ऑलवेज ऑन. यू मस्ट हैव हर्ड कि मैग्नेट हमेशा ऑन रहता है, चाहे उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई रहे नहीं रहे. तो मतलब मैग्नेट ऑन है, मतलब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत स्ट्रांग है और वो मतलब उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए. सो अगर हम पेशेंट को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक MRI में बोर ऑफ द मैग्नेट, सो उसमें जो रैंडम पेशेंट की बॉडी में जो रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स थे, वो अलाइन हो जाते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो इसके लिए हम
along the direction of external magnetic field. Some of them align parallel and others anti-parallel to the external magnetic field. When a proton aligns along external magnetic field, not only it rotates around itself spin but also its axis of rotation moves, forming a cone called as precession. स्पिन हमने देखा कि वो अपने एक्सिस में रोटेट करता है. तो जब वो व्हेन अ प्रोटॉन अलाइंस अलोंग इट नॉट ओनली रोटेट अराउंड इटसेल्फ बट आल्सो इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव्स फॉर्मिंग अ कोन कॉल्ड एज प्रेसिशन. तो वो इस तरीके से रोटेट करता है कि वो एक कोन फॉर्म करता है और वो अपने ही एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है, तो उसको कहते हैं प्रेसिशन. The number of precessions of protons per second is called precessional frequency and it is measured in hertz. तो वो कितना प्रेसिशन मतलब कितना रोटेशन फॉर्म कर रहा है, कितना रोटेशन ले रहा है, उसको कहते हैं प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज मेजर्ड इन हर्ट्ज. तो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू रिमेंबर. प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा मैग्नेट का, मतलब मैग्नेट 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला, 3 टेस्ला, तो उसके हिसाब से उसकी प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी. तो यहाँ हम देखते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स ऑल्सो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एट 1 टेस्ला, यू मस्ट रिमेंबर, ये बहुत सारे इसके क्वेश्चंस आए हैं पहले भी प्रीवियस एग्जाम्स में. तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 42 मेगा हर्ट्ज, 1.5 टेस्ला इज 64 मेगा हर्ट्ज एंड 3 टेस्ला इज 128 मेगा हर्ट्ज. सो ये याद रखना है हमको बेसिकली. तो इसके बाद हम देखते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी. लार्मर फ्रीक्वेंसी इज द रेट एट विच प्रेसिशन अकर्स. मतलब वो अपने एक्सिस के अलोंग कितना इससे घूम रहा है उसको कहते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी. द रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब बाय लार्मर इक्वेशन where W is the Larmor frequency, lambda is the gyromagnetic ratio and B is the magnetic field. इसके बाद हम देखते हैं मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन 2 टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स. मैग्नेटाइजेशन एक ये है कि हम मतलब किस डायरेक्शन में ज़्यादा प्रोटॉन अलाइंड है और किस डायरेक्शन में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वो सारे सम अप होके, हम आगे देखेंगे इस बारे में, सारे सम अप होके एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन फॉर्म करते हैं. और ये एक बेसिक प्रिंसिपल है एमआरआई का. सो पहले हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन. लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन is the component of net magnetization vector parallel to the magnetic field. तो यहाँ हम पहले axis magnetic field, this is due to the difference in the number of spins in parallel low energy and anti-parallel high energy state, that is before a radio frequency pulse. Longitudinal magnetization cannot be directly measured for measurement of longitudinal magnetization. It has to be transverse. So पहले हम ये एक बेसिक एक्सिस सिस्टम, एक बेसिक प्लेन लेते हैं XYZ. इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी प्लेन. तो इसकी जो Z एक्सिस है, इसकी Z एक्सिस ये पेशेंट ये बोर ऑफ द मैग्नेट और Z पेशेंट, ये तीनों का एक ही डायरेक्शन है. Z एक्सिस के ही अलोंग पेशेंट भी है और बोर ऑफ द मैग्नेट भी है. So external magnetic field is directed along the z-axis. Conventionally, the z-axis is the long axis of the patient as well as the bore of the magnet. जैसे मैंने बताया, protons align parallel and anti-parallel to external magnetic field, that is positive and negative. तो ये पहले प्रोटॉन्स ऐसे ही रैंडमली थे. तो जब पेशेंट बोर में लेटा, जब एमआरआई मशीन में गया, तो उसके सीक्वेंसेस हमने स्टार्ट नहीं किए, बट पहले ही उसके प्रोटॉन्स अलाइन हो गए अलोंग द मैग्नेटिक अलोंग द बोर ऑफ द मैग्नेट. ठीक है. तो उसमें कुछ अलोंग एक पॉजिटिव साइड है, ये है पैरेलल साइड एंड नेगेटिव साइड इज द एंटी पैरेलल साइड. Forces of protons on negative and positive sides cancel each other. So, however, there are always more protons spinning on the positive side or parallel to the z-axis than negative side. तो ये हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होता है. तो फोर्सेस इस साइड में, पॉजिटिव साइड में ज़्यादा होते हैं. सो आफ्टर कैंसिलिंग ईच अदर फोर्सेस, देयर आर फ्यू प्रोटॉन्स ऑन पॉजिटिव साइड्स एंड रिटेन देयर फोर्सेस. फोर्सेस ऑफ दीज प्रोटॉन्स एड अप टुगेदर टू फॉर्म अ मैग्नेटिक वेक्टर अलोंग द z-axis, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन. तो ये सब जो पॉजिटिव साइड में जितने भी ये फोर्सेस है वो एड अप होके लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बनाते हैं. यहाँ पे दिख रहा है जैसे. अब देखते हैं हम ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन. Transverse magnetization is the component of net magnetization vector perpendicular to the magnetic field xy plane. This is due to the spins of individual protons getting more or less into phase coherence, that is after a radio frequency pulse.
तो जब पेशेंट मैग्नेट MRI में प्लेस किया जाता है, मतलब मैग्नेट में प्लेस किया जाता है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इज फॉर्म्ड अलोंग द जेड एक्सिस, जैसे कि हमने देखा। द नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद हम RF पल्स, मतलब हम सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे, RF पल्स भेजेंगे। तो जो द प्रोसेसिंग प्रोटॉन्स पिक अप सम एनर्जी फ्रॉम द रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स। तो ये जो प्रोटॉन्स है, some of these protons go to the higher energy level and start processing anti-parallel along negative side of the z axis। तो अभी पहले ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव साइड में फॉर्म हुआ, तो अब अगर हम RF पल्स देंगे तो इसकी एनर्जी से ये मैग्नेटाइजेशन फ्लिप होगा, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होकर ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन फॉर्म होना चालू होगा। क्योंकि RF पल्स की एनर्जी हाई रहती है तो वो प्रोटॉन्स लेंगे ही, और the imbalance results in tilting of the magnetization into transverse XY plane. This is called as transverse magnetization. In short, RF pulse causes tilting of the magnetization into the transverse plane. So longitudinal magnetization, ये मैग्नेट के ही अपने से उसने अपना longitudinal magnetization फॉर्म किया, मतलब एडअप होके ज़्यादा उस साइड में फोर्स था, उसी साइड पे मैग्नेटिक फील्ड थी और मैग्नेटिक बोर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन फॉर्म हुआ। उसके बाद हमने RF पल्स दिया, मतलब हमने सीक्वेंस चालू किया, हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स दिया, तो उससे वो मैग्नेटाइजेशन टिल्ट हुआ, मतलब हमने कुछ एनर्जी दी तो वो एनर्जी उससे ज़्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए, तब वो जाके टिल्ट होता है। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स, मतलब ये है क्या? रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स आर यूज्ड टू एक्साइट द प्रोटॉन्स इन द बॉडी टिश्यूज। इन MRI, RF pulses are short bursts of electromagnetic radiation that interact with atomic nuclei, specifically hydrogen atoms in the body, causing them to absorb energy and temporarily change their alignment within the magnetic field। तो RF pulse ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है जो हमारे बॉडी में हाइड्रोजन प्रोटॉन्स के साथ इंटरैक्ट करती है, और वो हमारे हाइड्रोजन आइटम्स एब्जॉर्ब करते हैं वो एनर्जी को, और अपना अलाइनमेंट लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन से ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में टिल्ट होता है उसकी वजह से, ड्यू टू दी RF पल्सेस। रेजोनेंस, when the frequency of RF pulses matches the natural precision frequency of the protons, resonance occurs and the protons absorb energy। ये हमारे बॉडी में जो प्रोटॉन्स, मतलब हाइड्रोजन आइटम है, वो कब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे? जब उससे कम रहेगी तो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वो उससे कम रहेंगी तो उससे एक्साइट नहीं होने वाले वो हमारे जो हाइड्रोजन आइटम्स हैं। तो ये जो हमने फ्रीक्वेंसी, जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी देखी थी, जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, मूवमेंट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कितने हिस्से वो मूव करता है, तो उससे वो मैच होनी चाहिए, तब रेजोनेंस, ये एक टर्म है रेजोनेंस, ये होती है। When the frequency of RF pulse matches the natural precision frequency of the protons, resonance occurs and the protons absorb energy। RF pulse not only causes excitation but also makes them precise in phase। In phase ये एक अलग टॉपिक है, in phase, out phase, ये हम जैसे जैसे वीडियोस बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक फेज में रोटेट होता है। ये अभी बेसिकली ये समझ लीजिए आप लोग कि एक फेज में ये रोटेट होता है। RF पल्स सिर्फ उसको एक्साइट नहीं करता है हमारे इसको हाइड्रोजन आइटम्स को, बट उनको एक फेज में रोटेशन भी देता है। ये इन फेज आउट फेज इमेजेस होती है, वी विल डिस्कस इट लेटर। Net magnetization vector, the components of magnetization in longitudinal and transverse plane can be represented by a single vector। This vector represents some of these components called NMV, net magnetization vector। The component of magnetization in longitudinal and transverse plane can be represented by a single vector। NMV ये कहीं होता है LM, longitudinal magnetization और transverse magnetization के बीच में। अगर longitudinal magnetization 0 है तो अगर longitudinal magnetization 0 है तो ये इसका there is no longitudinal magnetization, so जो NMV वेक्टर है वो भी इक्वल होगा ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन के। इफ देयर इज नो मैग्नेटाइजेशन इन ट्रांसवर्स प्लेन, LM विल बी सेम एज NMV वेक्टर। मतलब अगर हमारा जो, जैसे हमने यहाँ देखा, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन फॉर्म हुआ है तो ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन विल बी इक्वल टू द NMV। इसके बाद longitudinal relaxation, spin lattice relaxation time और longitudinal relaxation time is a measure of how quickly the net magnetization vector recovers to its ground state in the direction of B0।
The return of excited nuclei from the high energy state to the low energy state or ground state is associated with the loss of energy to the surrounding nuclei. The energy released by the protons is transferred to the surrounding molecules, hence called spin lattice relaxation. हमने अभी longitudinal magnetization देखा था, अब हम longitudinal relaxation देखेंगे. रिलैक्सेशन कब होता है? जब हम आरएफ पल्स बंद करते हैं. जैसे हम सीक्वेंस चालू करते हैं, फिर सीक्वेंस स्टॉप होता है, तो वैसे हम जब मैग्नेटाइजेशन बंद मतलब आरएफ पल्स स्विच ऑफ करते हैं तब रिलैक्सेशन अकर होता है. तो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन, when RF pulse is switched off, spinning protons start losing their energy. The low energy protons tend to align along the z-axis. The low energy protons tend to align along the z-axis. As more and more protons align along the positive side of the z-axis, there is gradual increase in the magnitude of Lm. तो जब हम जैसे ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन मतलब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, ट्रांसवर्सली वो प्लेन जब हमने आरएफ पल्स दिया तो वो ट्रांसवर्स इसमें था, ट्रांसवर्स मतलब वाई एक्सिस पे था. जैसे वाई एक्सिस पे था तो वो जब हम बंद करेंगे तो वो धीरे धीरे अपना जेड एक्सिस पे आना चालू होगा, मतलब अपना एलएम रिकवरी, जिस कॉल्ड एलएम रिकवरी मतलब लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन, अपना एलएम वेक्टर वो फॉर्म करेगा. तो द एनर्जी रिलीज बाय द प्रोटॉन्स और इसी को लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन कहते हैं. जब हम आरएफ पल्स बंद करते हैं तो जो वाई एक्सिस पे जो प्रोटॉन्स मतलब ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन, तो वो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन फॉर्म करना चालू करेगा. The return of excited nuclei from the high energy state to low energy state or ground state is associated with loss of energy to the surrounding nuclei. तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है प्रोटॉन्स से वो सराउंडिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें वो जाती है, इसलिए इस प्रोसेस को स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन कहते हैं. मतलब ये जो आसपास में जो भी एटम्स होंगे या होंगे तो वो उनको अपनी एनर्जी देगा, तो इसलिए उसको spin lattice relaxation कहते हैं. The energy released by the protons is transferred to the surrounding molecules, hence called spin lattice relaxation. And transverse relaxation, also known as T2 or spin relaxation, describes the process where the magnetization component perpendicular to the main magnetic field gradually decays. This decay occurs because the individual spins initially synchronized by an RF pulse lose their phase coherence due to the local magnetic fluid fluctuation. After radio frequency pulse, spins in the sample become aligned and in phase. After RF pulse is switched off, these spins to gradually dephase, meaning they no longer persist in sync. Spin relaxation occurs due to the interaction between neighboring spin, leading to an exchange of energy and loss of phase coherence among the spins. तो transverse relaxation क्या है? तो transverse magnetization represents composition of magnetic forces of protons precessing at similar frequency. More the number of protons precessing at the same frequency in phase, stronger will be the transverse magnetization. मतलब जो transverse magnetization हमारा फॉर्म हुआ था तो RF पल्स ने एनर्जी दी थी तो LM TM में कन्वर्ट हुआ था, तो वो ज़्यादा इन फेज मतलब ज़्यादा वो इससे वो वहाँ के प्रोटॉन्स रोटेट कर रहे थे, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम थी. तो दिस प्रोटॉन्स आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू स्टैटिक और स्लोली फ्लक्चुएटिंग लोकल मैग्नेटिक फील्ड्स. तो जो hence they start losing phase after RF pulse is switched off. तो जब हम RF pulse switch off करेंगे, जैसे हमने longitudinal magnetization को रिकवर करने के लिए किया, तो वैसे हम transverse relaxation के लिए भी करेंगे. RF pulse हमने जब स्विच ऑफ किया तो जो ये इन फेज एटम्स थे जो एक ही फ्रीक्वेंसी में रोटेट हो रहे थे वो आउट ऑफ फेज होना चालू हो जाएंगे, और इनकी जो एनर्जी लॉस होगी वो जो आसपास में उनकी जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड्स होगी वो उनको वो अपना energy loss the energy देंगे. This decay occurs because the individual spin initially synchronized by the RF pulse lose their phase coherence due to the local magnetic field fluctuations. जो उसके आसपास में जो भी एटम्स होंगे उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वजह से उनका मतलब लूजिंग फेज चालू होगा. Spin relaxation occurs due to the interactions between neighboring spins, leading to an exchange of energy and a loss of phase coherence among the spins. T1 is the time when LM reaches back to the 63% of its original value. तो जब हम RF पल्स हमने जब स्विच ऑफ किया तो जो ट्रांसवर्स जो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन अकर हुआ तो वो पूरा रिकवर नहीं होता है. 63% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू ही वो रिकवर हो पाता है. जो भी एटम्स जो भी हमारे प्रोटॉन्स रहते हैं वो. तो the chemical and physical properties of tissue, example water content, fat content, protein structure influence the T1 relaxation time. T1
this is not exact but it's constant. T1 is the time when LM reaches back to the 63% of its original value. तो T1 ये किस पे डिपेंड करता है, 63% रिकवर होता है ये. तो T1 ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, टिश्यू कंपोजिशन पे. जैसे हमने वहाँ देखा कि वो आसपास के सराउंडिंग को अपना एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, जो भी एटम्स जो LM रिकवरी की तरफ हैं. तो T1 ये किस पे डिपेंड करता है कि टिश्यू कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड सराउंडिंग्स. इफ द सराउंडिंग मैटर हैज मैग्नेटिक फील्ड will fluctuate at Larmor frequency, transfer of energy from protons to the surrounding is easy and fast. तो ये टिश्यू कंपोजिशन पे डिपेंड करता है. तो इफ़ द सराउंडिंग मैटर हैज़ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो भी वहाँ पे टिश्यू जो है उनकी मैग्नेटिक फील्ड और उनमें जो एटम्स है, उनमें जो प्रोटॉन्स है, उनकी लार्मर फ्रीक्वेंसी अगर इससे सेम फ्लक्चुएट होती है तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है. इस एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ वेरी फास्ट to the other atoms. Water takes longer time to transfer energy. On the other hand, fast energy transfer in fatty tissues. तो protons, water molecules बहुत move too rapidly. The protons in water take long time to transfer their energy. So ये जल्दी डिफेज, मतलब जल्दी LM की डिफेज नहीं होता है ये, मतलब जल्दी LM रिकवरी नहीं होती है किसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स की. सो इसलिए इनका जो T1 टाइम है, रिकवरी टाइम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, सो ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए लॉन्ग T1, और फैट का शॉर्टर T1. द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द MRI स्कैनर कैन ऑल्सो अफेक्ट T1 वैल्यूज़. तो T1 वैल्यूज़ किससे और अफेक्ट हो सकती है, पहले तो वो डिपेंड करती है टिश्यू कंपोजिशन पे. T1 ये क्या है, LM रिकवरी है, 63% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू टिश्यू कंपोजिशन पे डिपेंड करती है. ये किससे अफेक्ट होता है, जो आजू बाजू के जो एटम्स रहते हैं उनके लार्मर फ्रीक्वेंसी पे. वाटर का लॉन्ग T1 होता है, फैट का शॉर्ट T1 होता है. और स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड की थी, जो हमने देखी थी 1 टेस्ला 1.53 टेस्ला, उस पर वो भी T1 वैल्यूज़ को अफेक्ट करता है. जैसे कि T1 at 3 टेस्ला इज लॉन्गर दैन T1 ऑफ द सेम टिश्यू एट 1.5 टेस्ला. T1 जो 3 टेस्ला पे और T1 जो 1.5 टेस्ला पे, वो T1 3 टेस्ला वाला लॉन्गर रहेगा. जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा T1 लॉन्गर रहेगा उसका रिकवरी टाइम. हाँ, एक तो गैडोलिनियम, ये हम कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं MRI में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है. गैडोलिनियम कैन शॉर्टन T1 रिलैक्सेशन टाइम्स. ठीक है. T2, the T2 relaxation time is the time it takes for this transverse magnetization to decay to approximately 37% of its initial value. T1 63% हुआ था, T2 relaxation time है T2 relaxation time it takes for the transverse magnetization to decay. LM recovery होता है, ठीक है. T2 decay मतलब 37% of its approximate value. T2 relaxation is influenced by tissue properties, particularly how water molecules and their protons move and interact with their environment. For example, fluids have longer T2 times than solids, and fat has a shorter T2 than water. T2 depend करता है local magnetic fields within the tissue. As the water molecules move very fast, the magnetic field fluctuate fast. The fluctuating magnetic field cancel each other, so there is no big difference in magnetic field strength inside such a tissue. Because of lack of much homogeneity, protons stay in phase for a long time, resulting into long T2 for water. वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत फास्ट मूव करते हैं, इसीलिए उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट होती है वो अपने आप को कैंसिल कर लेती है. सो देयर इज़ नो मच बिग डिफरेंस. सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मच इनहोमोजेनिटी प्रोटॉन्स से, तो जो T2 जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें प्रोटॉन्स बहुत देर तक इन फेज रहते हैं, इसलिए उसका T2, फॉर एग्जाम्पल फ्लूइड्स हैव लॉन्गर T2 टाइम्स दैन solids, and fat has shorter T2 than water. Water का long T1 and long T2. Okay. इसके बाद T2 stir. It measures how quickly the magnetic signal from protons in a tissue decays, taking into account both intrinsic tissue properties and magnetic field imperfections. So it measures how quickly the magnetic signal from protons in a tissue decays. वही जो डिके हम जो देख रहे हैं, तो इसमें बहुत टिश्यू प्रॉपर्टीज पे भी ये डिपेंड करता है, और मैग्नेटिक फील्ड इम्परफेक्शंस, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशंस. जो T1 का है जो है वो टिश्यू प्रॉपर्टीज पर, T2 मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशंस जो होती हैं. दिस डिके इज इन्फ्लुएंस बाय बोथ स्पिन स्पिन इंटरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज. दिस डिके इज इन्फ्लुएंस बाय बोथ स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड. और T2 स्टर इमेजेस ये बहुत ज़रूरी होता है हेमरेज, माइक्रोब्लीड्स, ब्रेन इंजरी, आयरन डिपोजिशन, ये सब डिटेक्ट करने के लिए.
तो ये हम बाद में अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे. सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल इट. सो नेक्स्ट हम इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें T1 वेटेड इमेजेस, T2 वेटेड इमेजेस और मैग्नेट्स, टाइप ऑफ मैग्नेट्स, फिर स्कैनिंग पैरामीटर्स, ग्रेडियंट, सीक्वेंसेस, बहुत सारा और कुछ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.